محرم کے مہینے میں عام طور پر ایک موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ ہے عاشور کا روزہ. اب عاشور کے روزے کے بارے میں کتب اہل سنت میں مختلف قسم کی روایات ہیں. ہر روایت کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشور کا روزہ رکھتے تھے. اب سوال کیا جائے بائبل سے اور خود سوال کیا جائے یہودیوں سے کہ آیا وہ اسلامی کیلنڈر کو مانتے ہیں محرم کو؟ آیا وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو جواب تو یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے کیلنڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب یہ کہا جائے گا کہ جو یہودی چاند کے کیلنڈر کو بھی مانتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ چاند کے کیلنڈر کو مانتے ہیں، یعنی لونر کیلنڈر ان کے یہاں ہے، ساتھ میں سولر کیلنڈر بھی ہے. لیکن جو اصل موضوع ہے چائنا والوں کی طرح وہ سولر اور لونر کیلنڈر کو ملا کے چلاتے ہیں اور ایسے کیلنڈر کو کہا جاتا ہے لونر سولر. اب یہ لونر سولر کیلنڈر کیسا ہے کہ دنوں کی تعداد جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن سال کی مقدار جو ہے وہ سورج کے حساب سے ہوتی ہے. اور کیونکہ چاند کے مہینے میں 10 دن کم ہوتے ہیں سورج کی نسبت سے، اور پھر یہ الگ الگ تاریخوں میں آتا ہے، تو یہودی یہ کرتے ہیں کہ ہر تیسرے سال 30 دن کا ایک مہینہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی ہر تیسرے سال 12 کی جگہ 13 مہینے کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے چاند اور سورج کی یعنی قمری اور شمسی تاریخوں کو قریب قریب کر دیتے ہیں. تو ان کے ہاں تو کبھی بھی محرم نہیں ہے اور نہ کبھی عاشور ہے. اب اگر کوئی کہے کہ پہلے ایسا تھا تو پہلے بھی ایسا نہیں ہے. یہ ان کے ہزاروں سال سے چل رہا ہے. 1400 سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ وہ محرم کی تاریخ کو مانتے تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودی کون سی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ جائیں سرچ کریں، آج کل تحقیق آسان ہو چکی ہے. یہودیوں کا ایک اہم ترین دن ہے اور وہ ہے یوم کیپور یا یوم کیپور. یہ ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے. ہمارے یہاں وہ افراد کہ جو یہودیوں کے بڑے چہیتے تھے اسلام میں داخل ہوئے، ان کی ایک علامت ہے اہل بیت سے بغض، کیونکہ اہل بیت کی وجہ سے ان کے قلعے برباد ہوئے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا، لہذا وہ آج موجود ہیں اور ان کی علامت ہے بغض اہل بیت. ان لوگوں نے اس یہودی کلچر کو رکھنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا. بس یاد رکھیں یہودی عاشور کے دن روزہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے 7ویں مہینے یعنی تشری کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان تمام روایتوں کا سلوشن یہ ہے کہ خود دیکھا جائے کہ یہودی کب روزہ رکھتے ہیں. یہودی کبھی بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے، اور نہ محرم ان کا مہینہ ہے اور نہ ہی ان کا کیلنڈر محرم کے حساب سے چلتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ اہل تشیع کا اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ آل امیہ کی سازش ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں. تو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی. جواب نمبر 1، اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا. یہ عید اس حوالے سے نہیں، یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا. عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا، وہ یہودی بولتے تھے، لیکن روزہ ہے اس کے اندر، لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے، روزہ تو نہ رکھتے. اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں، اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ. اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، قوم سمود کو برباد کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا. تو یہ ایام اللہ میں سے تھا. جواب نمبر 2، یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے، ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈیلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانحہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے. وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو. تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنی جگہ رہیں گے. البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے، اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر. شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا.
शेख जुबैर अली ज़ही साहब के उसूल पे भी गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने इस हदीस को सही कहा है कि सैयदना अली से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली मैं तुम्हें दो बदबख्त ना बता दूं जो इंसानियत की तारीख में सबसे बड़े बदबख्त हैं। पहला वो शख्स है जिसने कौम समूद की ऊंटनी को कत्ल किया था और उसकी वजह से अल्लाह का अजाब आ गया था, और दूसरा बदबख्त वो होगा जो मेरी उम्मत में होगा, जो ए अली तुम्हें कत्ल करेगा, तुम्हारे सर पे ऐसी ज़र्ब लगाएगा कि तुम्हारी दाढ़ी जो है वो सर के खून से रंगी जाएगी। यानी जिस तरह कौम समूद पे अजाब आया था ना ऊंटनी काटने की वजह से, इस उम्मत पे भी अजाब आया हजरत अली को कत्ल करने की वजह से। ये रिज़ामनेस आप देख लें। और वाकई उसके बाद फिर उम्मत को वो खिलाफत नसीब नहीं हुई दोबारा, सवाए बीच में 2 साल उमर बिन अब्दुल अजीज के। तो हजरत अली की जो शहादत का दिन है वो तो उससे बढ़ के गमनाक दिन है, लेकिन इसकी वजह से कोई रमजान की फजीलत का इनकार नहीं करेगा। इसी तरीके से 10 मुहर्रम के उस वाक़े से वो हम अपनी जगह 10 मुहर्रम की अपनी फजीलत डिस्टर्ब नहीं होगी। जवाब नंबर 3, हमारे मुहद्दिसीन मुनसिफ मिजाज थे, उन्होंने कोई चीज उम्मत से नहीं छुपाई। अगर उन्होंने मामलात को डाइल्यूट करना होता ना, तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये नई बिदत 30-40 साल से जो शुरू हुई है कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर की शहादत का दिन डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारे मुहद्दिसीन ये काम करके जाते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। आप अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें हैं सहाबा कराम के हालात के ऊपर, इनसे बड़ी कोई और किताबें नहीं। नंबर 1 अल इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर अल मुतवफ़ा 463 हिजरी। नंबर 2 है उसुदुल गाबा, इमाम इब्न असीर रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 630 हिजरी। 8000 सहाबा के हालात जिंदगी उसमें जमा किए उन्होंने, और इसी की शरह लिखी है इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। उस शरह का नाम है अल इसाबा, उसुदुल गाबा की शरह, और ये सारी उर्दू में आ चुकी हुई है। 8000 सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया। उसमें आप सैयदना उमर के चैप्टर में जाएं और जाके देख लें कि सैयदना उमर की शहादत कब हुई है, 26 जुल्हिज्जा को हुई है। इवन आप गूगल में सर्च करें, गूगल में विकिपीडिया ने जो पेज बनाया हुआ है जो सुन्नियों ने बनाया है, उसमें भी 26 जुल्हिज्जा लिखा हुई है। 26 जुल्हिज्जा 23 हिजरी, ये कहते हैं यकम मुहर्रम 24 हिजरी बनता है। ये सिर्फ 10 मुहर्रम को नीचा करने के लिए इंडिया पाकिस्तान में जो खवारिज हैं उन्होंने काम शुरू किया, और आप देखें उन्होंने पैरलम में यकम मुहर्रम के जुलूस निकालने शुरू कर दिए। आप मुझे बताएं, अगर जुलूस ही निकालना है तो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की ज्यादा अहमियत होनी चाहिए यकम मुहर्रम के? 12 रबीउल अव्वल के, वो तो नबी इस्लाम का दिन है, उसको तो वही खवारिज पार्टी जो है वो कहती है बिदअत, और शिया की बुक्स के अंदर आकर यकम मुहर्रम को उन्होंने सुन्नत के तौर पे जारी कर दिया। मैं तो आई जलसे जुलूसों के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिर्फ प्रोग्राम होने चाहिए। ये सड़कें ब्लॉक करके लोगों को जलील करना और मुसाफिरों को, मरीजों को तंग करना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कतन कोई गुंजाइश नहीं। किसी किस्म का जलसा जुलूस नहीं होना चाहिए कि जिससे रोड्स ब्लॉक हो, लोग तंग हो। तो अहले सुन्नत के अइम्मा ने ये हरकत नहीं की है। इवन एक रवायत थी इसमें इब्ने असीर ने नकल की थी उसुदुल गाबा में कि सैयदना उमर को जब हम दफना कर फारिग हुए तो यकम मुहर्रम का चांद उस रात को निकला था। वो भी यकम मुहर्रम नहीं बनती, लेकिन उसके साथ इब्ने असीर ने लिखा ये रवायत सही नहीं है। सही रवायत ये है कि 26 को हुई, और यकम मुहर्रम से पहले हजरत उस्मान की बैत हो चुकी थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा राशिद 23 हिजरी में ही चुने जा चुके थे, और वो आपको पता 3 दिन के बाद चुने गए थे, 3 दिन मुशावरत हुई थी। तो 26 जुल्हिज्जा वाली बात बिल्कुल ठीक है, आप गूगल में भी जाके सर्च कर लें। तो ये मेरा तीसरा जवाब था कि अगर ये 2 नंबरी हमने करनी होती तो हम मानते। हम तो डके की चोट पे कह रहे हैं कि यकम मुहर्रम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम का यौम शहादत नहीं है। जो बात सही है वो हम मानते हैं। बाकी 10 मुहर्रम में तो इजमाए उम्मत है कि सैयदना हुसैन की शहादत हुई करबला के अंदर 61 हिजरी में। जवाब नंबर 4, मेरे भाइयों, अहले हदीस और अहले सुन्नत यानी इंटरचेंजेबल वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अहले हदीस में मनहज के एतबार से बात करो, मुहद्दिसीन अपने लिए अहले हदीस इस्तेमाल करते थे, अहले सुन्नत भी। अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन अगर अहले बैत से बुग़्ज़ रखते होते तो कत्ले हुसैन का जिक्र अपनी हदीस की किताबों में ना करते। मैं दर्जनों अहदीस सिर्फ बुखारी और मुस्लिम से जुबानी बता सकता। एक नमूने के तौर पर सही बुखारी में हुसैन अलैहिस्सलाम के चैप्टर में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748, इमाम बुखारी लेके आए कि हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट कर तश्त में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा यजीद इब्न मुआविया का उनके सामने लाकर रखा गया। तो वो उसके साथ उनके हुस्न के बारे में कोई बात करने लगा, तो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हुसैन इब्न अली नबी अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा हम शक्ल थे। ये बुखारी में हदीस है, तो पर्दा तो कोई नहीं डाला उन्होंने। और इस हदीस में इमाम बुखारी ने हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा है 3748। आप जाके इस्लाम 360 में भी देख ले, सुन्ना.com में, लेकिन अरबी में देखिएगा, उर्दू ही मौलवी बढ़ गया है और रज़ियल्लाहु अन्हु करता है। मौलवी बढ़ जाए तो उन्हीं की शाय काट सकती है, ये मौलवी जो निकली हुई है। यानी सर्च किया है कि ना मैं वापी, ना मैं बापी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ठीक होगा जी। और मुस्नद अहमद में 2165 नंबर हदीस है। यानी ये तो हदीस इतनी जबरदस्त, यानी तवातुर के साथ नकल हुई है इब्न अब्बास के कई शागिर्दों से।
शुएब अर्नौत भी इसे सही कहते हैं, शेख जुबैर साहब ने भी नकल की फज़ाइल सहाबा में कि नबी इस्लाम की वफात के 50 साल के बाद इब्न अब्बास ने दोपहर के वक्त एक ख्वाब देखा। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, सहाबी ने, और बुखारी मुस्लिम की हदीस है जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे को देखा। सहाबा को तो उनकी शक्ल का भी पता था। इब्न अब्बास कहते हैं मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक गर्द आलूद है, परांदा हालत है, कपड़ों पे गर्द है, हाथ में खून की शीशी है और परेशान खड़े हैं। मैंने पूछा अल्लाह के नबी इस्लाम आपको किसने गमज़दा किया, ये आपकी क्या हालत है? तो आपने फरमाया आज मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून समेट रहा हूं। ये एक तशबीह थी। ख्वाब जो है एक अलग से एक महकमा है, वो मेरा क्लिप देख लें, लाखों लोग देख चुके हैं। ख्वाब में दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने डिटेल बताई है। ये नहीं होता कि ये फिजिकली परफॉर्म हुआ होता है, ये एक तमसील दिखाई जाती है। इब्न अब्बास कहते हैं मैं डर के उठा, मैंने वो तारीख और दिन नोट किया। ज़ाहिर उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था, मीडिया का दौर नहीं था। कुछ अरसे के बाद खबर मिली कि उसी दिन 10 मुहर्रम जुम्मे के दिन 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली और उनके साथियों को बेदर्दी के साथ करबला में शहीद किया गया। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन्होंने अहले बैत के साथ जुल्म किया। तो मेरे भाइयों, ये अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में वाक़यात नकल किए हैं। उनको कोई 10 मुहर्रम के साथ चिढ़ नहीं थी, वो तो मतलब दूसरे एंड में खड़े हुए थे, नासबियों के खिलाफ खड़े हुए थे, यजीदियों के खिलाफ खड़े हुए थे। 5वां नंबर जवाब आखिरी, कि अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने तो अपनी हदीस की किताबों में आले उमैया को नंगा किया है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर सब्बो शतम वाली हदीस है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में मिंबरों पर मौला अली पर लानत होती थी। सही मुस्लिम खोल के देख ले, 6229 नंबर हदीस है। अबू तुराब पर अल्लाह की लानत, लाअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह। ईसा इब्न साद अस-सादी को बुलाकर हुक्म दिया गया आले मरवान की तरफ से कि आके मिंबर पे हजरत अली पे लानत करो, उन्होंने इनकार किया। ये मुस्लिम शरीफ ये हदीस जो है वो बयान करता है, सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम। अगर उनको 10 मुहर्रम से बुग़्ज़ होता, कभी ये हदीस नकल कर सकते थे? कभी भी नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा सबूत है कि अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मिजाज थे। लिहाजा यही बुखारी और मुस्लिम जो हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिख रहे हैं, आले उमैया की कारस्तानियां बता रहे हैं, सबो शतम की हदीसें रवायत कर रहे हैं, अगर वो 10 ज़ुल्हिज्जा 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत बयान करें तो उन पे ऊपर शक नहीं करना चाहिए। वो मुझसे मिजाज लोग थे, बिल्कुल सही सनद से साबित है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे 10 मुहर्रम के वाक़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बाकी आपको डिटेल देखनी है, मेरा कुछ अर्सा पहले लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, लाखों लोगों ने देखा, रिप्लाई टू मौलाना इलियास कादरी ऑन हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसमें मैंने कई चीजें ब्रेलियो के तर्जुमे एचडी कैमरे में दिखाए हैं। बुखारी मुस्लिम ने किस तरीके से आले उमैया के दौर में जो कुछ बुराइयां होती थी खोल के बयान की है। लिहाजा उनके बारे में आप तसव्वुर भी ना करें कि उन्होंने 10 मुहर्रम को डाइल्यूट करने के लिए कोई इस तरह की हदीसें घड़ी हैं। नाउज़